holding our national conference here, All India Road Transport Workers Federation. It's a pioneer organization of road transport workers in the country. Several agitations and struggles were conducted by this organization for the betterment of life of the road transport workers. See, the road transport workers are the most suffering working people in our country. They are doing a very crucial job. Transport is lifeline of our country, not only the passenger transport. You see our food grains, fertilizer, minerals, all factory products, vegetable, fruits, all are transporting through this road transport mode. These work are done by these workers. But what is the fate of these poor workers? They have no permanent employment. Only in some state transport undertakings there are permanent employment and a salary structure like that. Haryana Roadways may be the state, and Kerala State Road Transport Corporation there may be the only in that. But the vast majority of the transport is in private sector. Not very some small operators are operating their vehicles in a big way in this sector. Take the example of auto rickshaw. This is a self-employment mode. Some youngsters getting money as loan from banks and purchasing an auto rickshaw, and they are doing that work. They have no minimum wage. They have no pension. They have no social security. They have no retirement pension. As long as they are healthy, they are working, doing their work. When the price of petroleum products going up, they are losing. There is no scheme to compensate them. That is the position of road transport workers in this country. You take the example of truck workers. From Delhi, they are taking load and transporting to Kerala, from north to south. What sufferings they are. What is their wages? What is their living conditions? What is their service condition? There is no mentioning in the laws. There is an act, Motor Transport Workers Act. That act is years back. That also not implemented. And because majority of the workers are unorganized, they are not in a position to pressurize the government, state governments and central governments to implement the laws which are in the country for the welfare of these workers. So our motto is, our aim is to unite all the road transport workers under a banner. And there may be other organizations also. Unite with them also and put a strong struggle in front of government for the betterment of the service condition of these workers. That is the deliberation which is going on in this conference. ये एक करीम सांसद हैं और उन्होंने ये जो 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन जो शुरू हुआ है हिसार में रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसका उद्घाटन किया है। मुख्यतः उन्होंने जो बातचीत कही है वो एक तो कि पूरे देश के अंदर ये फेडरेशन के अंडर लाखों मजदूर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में है, उसके अंदर काम करते हैं। ये उसका 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और मुख्य जो एजेंडा है इस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि खासकर 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है वो सभी क्षेत्रों के अंदर उन्हें एक प्रकार से निजी हाथों में, और वो ये कह रही है कि बिजनेस करना जो है वो सरकार का काम नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। इसलिए तमाम क्षेत्रों में वो उसको निजी हाथों में सौंप रहे हैं। दूसरी बात ये कि खासकर ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है, मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है 2019 के अंदर सरकार ने, और उसका पूरा जो उसकी पूरी जो लाइन है वो इस आधार पर है कि जितना भी सरकारी क्षेत्र के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको प्राइवेट कर दिया जाए। और आप देखेंगे पूरे देश के अंदर बहुत कम स्टेट ऐसे बचे हैं जहां सरकारी क्षेत्र के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट बचा हो। सेकंड, इन्होंने ये कहा है कि जो सरकार ने पूरा का पूरा रोड का जो ढांचा है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया है। और जब से ये सरकार आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के वो कम हो रहे हैं। मतलब आप देखेंगे जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी तब $120 प्रति बैरल जो है ये खर्च था पेट्रोलियम पदार्थों का, अगर देखेंगे क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। और
आज वो जो है वो बिल्कुल 30 और 35 डॉलर प्रति बैरल आ चुका है। लेकिन अब रेट देखेंगे तो जिस समय बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी वो 65 रुपए पेट्रोल का रेट था, आज वो बढ़कर कितना हो गया हम देख सकते हैं। और उसका असर जो है खासकर परिवहन क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर जो है ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है, चाहे वो खाद्य का मामला हो, चाहे वो सामान का इधर उधर करना हो, वेजिटेबल्स का मामला हो, और इसका असर सीधे महंगाई पे आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और जो इस क्षेत्र के अंदर जो लोग काम करते हैं लाखों की संख्या में, उनके वेज भी वो कम होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो मिनिमम वेज तक जो है वो मजदूरों को और ड्राइवर जो उसको लेके जाते हैं उनको किसी प्रकार की वो सुविधा नहीं है, उसको लेके मुख्यतः काम कर रहे हैं। और तो पहले उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा कुल मिला के जो लक्ष्य ये है कि किसी तरीके से ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसको बचाया जाए, और जो परिवहन क्षेत्र के अंदर जो भी मजदूर या कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। उसके बारे में यहाँ मंथन होगा और 3 दिन लगातार बहस होने के बाद आगामी आंदोलन की एक बड़ी रूपरेखा तय की जाएगी। ऐसा तय किया है, सुधार कैसे लग सकते हो? ऐसा है कि जब ये आज़ादी हुई ना देश की, आज़ादी के बाद में ये वेलफेयर स्टेट था, जो कंसेप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वेलफेयर स्टेट में जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराने का काम देश की सरकार का है। और इसी उद्देश्य के साथ ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, बिजली है, रोड है, सब कुछ जो है ये खड़ा हुआ। लेकिन आज पूरी तरीके से उसको बदल दिया गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रॉफिट के लिए नहीं था, बिजली का ट्रांसपोर्ट ये प्रॉफिट के लिए नहीं था, हेल्थ, एजुकेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये नवोदारीकरण की जब नीतियाँ 1991-90 से शुरू हुई, अब इनको पूरी तरीके से मतलब प्रॉफिट के हिसाब से देखना शुरू कर दिया है। तो जहाँ तक सुधार की बात है, सुधार मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हरियाणा रोडवेज की जो हमारी सर्विस है पूरे देश में एक बार नहीं कई बार इसको अवार्ड मिला है टाइम पे सर्विस देने का। 19 बार टाइम पे सर्विस देने का और सुरक्षित सर्विस देने का, और इससे बेटर कोई सर्विस दे नहीं सकता। इसके बावजूद भी निजीकरण क्यों किया जा रहा है? किसकी डिमांड है? आप गांव में पूछ करके देखो, हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं वो रेजोल्यूशन दे रही हैं कि हमारे गांव से रोडवेज की बस चले, बावजूद इसके रोडवेज की बस क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि जो सरकार बैठी हुई है वो वोट लेने के लिए जनता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो उन्हीं लोगों का भला सोचती है, जनता का भला नहीं सोचती। इसलिए हम ये करें 14,000 बसें आनी चाहिए। 14,000 बसें आएंगी तो लगभग 70,000 से ज़्यादा नौकरी मिलेंगी। बेरोजगारों को नौकरी मिली नहीं मिली, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। तो इसलिए जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उन सब को संगठित करके इन सर्विसेज को बचाने का तब बच सकती हैं। अकेले एम्प्लॉइज से नहीं बच सकती। एम्प्लॉइज अदर देन एम्प्लॉइज सब मिल करके लड़ेंगे तो इन सर्विसेज को हम बचाएंगे। अदरवाइज सरकार ने तय कर लिया कि इन सब हम, वो कह रहे हैं निजीकरण करेंगे, हम करेंगे बेचेंगे। दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू आज देश में, और 60 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं केंद्र में और राज्यों में। सरकार क्यों नहीं भर रही? सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए अब पक्की भर्ती नहीं होंगी। ये नहीं कह रहे वो पैसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इन पॉलिसीज़ में हर साल 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको माफ़ किया जा रहा है। ये अरबों रुपया जो बैंकों से ले रखा है वो सब भाग्य वो रिटर्न हो नहीं रहा, एनपीए बढ़ रहा है। जब सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा आता है और जिसने टैक्स देना था, मोटा टैक्स देना था, उसको तुमने माफ़ कर दिया। अब वो माफ़ कर दिया, दूसरी तरफ बैंकों से जो पैसा लिया है वो वापस आ नहीं रहा है, तो पैसा कहाँ से आए? इसलिए फिर ये जो डीजल का, पेट्रोल का, रसोई गैस का, इसका कोरोना काल में ही 28 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा इससे हासिल किया सरकार ने। इसलिए जो बोलते हैं ना भाई और बहनों, गरीबों के चिंता में हम तो बड़े साहब सोते नहीं हैं। बड़े साहब गरीबों की चिंता में नहीं सोते हैं। बड़े साहब को चिंता है अडानी की, अंबानी की। उनकी अडानी की संपत्ति 16 से अब तक 22 में अगर हम देखें तो 350 गुना तो अडानी की बढ़ गई है, 750 गुना उसके बढ़ी है। प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है। जहाँ नौकरी जा रही है, बेरोजगारी है, असमानता है,
लोगों को रोजी रोटी भारी पड़ रही है। उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई है? वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उनके पक्ष में पॉलिसी हैं और इन सारे संसाधनों को उनके हवाले किया जा रहा है। तो इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को साथ आना पड़ेगा। जब ये पब्लिक सर्विसेज बचेंगी, रोजगार बचेगा। अदरवाइज सरकार तो पूरी तरीके से अपना काम तमाम कर रही है। इसके साथ ये जो कम्युनल एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, जाति का, धर्म का, आप देखेंगे चर्चा आज देश में क्या है? बेरोजगारी की है, महंगाई की है। चर्चा ये है कि शिवलिंग है या फवारा है, ये क्या इशू है? लेकिन उसी पर चर्चा सारी की सारी केंद्रित करी जा रही है। कोई हनुमान चालीसा कहीं पढ़ेगा, कोई कहीं पढ़ेगा। ये क्या हो रहा है? मतलब असली जो रियल इशू हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये जो खाम खा के जो बनावटी इशू हैं इनको पैदा किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर 24 घंटे क्या काम चल रहा है? शाम को आप देखेंगे नेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है, मतलब यही चल रहा है। तो इसलिए समझ में आएगा, यूथ की समझ में नहीं आया कि जब अग्निवीर मतलब आया उसकी समझ में आ गया। और एक बात हम आपको आपके मार्फत से पूछ रहे हैं सरकार से, सरकार कह रहे हैं कि हम 4 साल के बाद जब वो रिटायर होके आएंगे हम उनको नौकरी देंगे। साहब कैसे नौकरी दोगे आप? जो रिटायर फौजी हैं उन्होंने अप्लाई कर रखा है, 100 ने अप्लाई किया तो 1.6 को नौकरी मिल रही है। साहब पहले उनको तो दे दो आप। और इनको कैसे नौकरी दोगे? हम जरा बताए ना, जरा कैसे नौकरी देंगे? रिजर्वेशन करना पड़ेगा ना, पहले से ही रिजर्वेशन फुल है, कैसे दोगे नौकरी? तो आपने भाषण दिया 1 रैंक 1 पेंशन, अब ना रैंक है ना पेंशन है। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठा रहे हैं आप। तो साहब पुरानी पेंशन ले रहे हैं, 30 साल के बाद नौकरी करके जाए कर्मचारी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेबर कोड्स को ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर हमला हो रहा है। तो कोई साधारण परिस्थितियाँ नहीं है। तो 16 से 18 3 दिन हम यहाँ मंथन करेंगे और फिर निश्चित तौर से इन तमाम मुद्दों को लेकर के रणनीति का ऐलान यहाँ से किया जाएगा। मंथन करने के बाद क्या देखने को मिल सकता है? मंथन करने के बाद लड़ाई का ऐलान होगा और क्या देखने को मिलेगा? लड़ाई मैदान में देखने को मिलेगी। सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। किन किन का योगदान यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बात करें महिलाओं की तो महिलाएं भी काफी संगठन से यहाँ पर आज आई हुई हैं। देखो ये हमारे ये जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है ना, देश का सिंगल एकमात्र सारे सेक्टर में काम करने वाला बड़ा संगठन है। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। तो सब मिल करके ही लड़ेंगे और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। जो नैरेटिव सेट सरकार करना चाहती है कि रियल इशू पीछे चले जाएं और दूसरे इशू मतलब उस पर आ जाएं फ्रंट पे, तो उनको निश्चित तौर से हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता को समझाना पड़ेगा, तब अपने सेक्टर बचेगा। क्या किसानों का भी कोई योगदान इसमें? निश्चित तौर से किसानों का क्यों नहीं? यहाँ किसानों के प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इस सम्मेलन के आयोजन में बहुत बड़ी मदद किसानों ने की है। तो किसान है, मजदूर है, जो CITO हमारा संगठन है, किसान सभा है, नौजवान सभा है, स्टूडेंटों ST हमारी SFI है, ये सारे महिला समिति है, सब मिल करके इसको कर रहे हैं। बाकी सब क्या प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ युवा को नौकरी भी दिलवाएंगे? निश्चित तौर से नौकरी के लिए तो लड़ रहे हैं। अब मैंने रखा 60 लाख पद खाली पड़े हैं। अब यूथ जो है वो तिलक लगा करके, गमछा डाल करके जो नारे लगा रहे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए ना। यहाँ नौकरी मिलेगी, वहाँ तो जेल में जा सकते हैं। लेकिन नौकरी के लिए एजुटेशन कहाँ है? एक संगठित रूप से हम यूथ को जागरूक कर रहे हैं और यूथ निश्चित तौर से हमारे साथ आएगा और यूथ के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सर आप यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे? जगह जगह पर नारे लगवाकर या फिर उनको मोटिव देकर या फिर कॉलेजेस में जाकर कैसे आप अपना ये सब? नारे लगाने का तो बाद का काम है। पहले उनको ये समझाएंगे कि जो आज हो रहा है उसमें नौकरी नहीं मिलनी है, उसमें तो दूसरा कुछ होगा। उनको पहले हम उनके अंदर विश्वास पैदा करेंगे, आपको रोज़गार मिल सकता है। रोज़गार मिलेगा तो संगठन के साथ आएंगे, संगठन के साथ आएंगे तो लड़ेंगे, नारे भी लगेंगे, नौकरी मिलेगी। आम जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? आम जनता के लिए यही संदेश है कि पब्लिक सर्विसेज को बचाने के लिए, रोडवेज को बचाने के लिए जो हमारा आंदोलन का निर्माण हम करना चाहते हैं, बगैर जनता के सहयोग पे नहीं हो सकता। जनता से हमारा आग्रह है कि इस पब्लिक सर्विसेज को बचाने के लिए और तब ये पब्लिक सर्विसेज बचेगी।